Hello everyone, again welcome in video lecture class. Now I am going to talk about the topic education for multiple intelligence, which is related to the specialization paper of MEd semester 3 secondary and senior secondary education and the unit related unit 1. आज मैं आप सबों का पुनः वीडियो लेक्चर क्लास में हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यूनिट 1 के अंतर्गत बहुबुद्धि के लिए शिक्षा। यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत आपका स्पेशलाइजेशन पेपर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिट 1 में है। जब कहीं भी बहुबुद्धि की बात करते हैं, सर्वप्रथम बुद्धि के बारे में बताऊं, बुद्धि की बात करते हैं तो ये जन्मजात नहीं होती है। एक चीज तो स्पष्ट है, यानी व्यक्ति जन्म लेने के बाद जो उसके आसपास घटनाएं चल रही होती है उसको देख कर ही धीरे धीरे या अनुभव कर ही वो सीखता है। That means on the basis of understanding skill, on the basis of all around events, and on the basis of feeling, he or she know about the meaning and view of intelligence. कहने का तात्पर्य ये है कि बाय बर्थ बुद्धि नहीं आती, ये चीजें स्पष्ट हो रही है। तो फीलिंग हो या अनुभव हो, संख्या का आधार हो, चित्र अलग अलग प्रकार को उसे समझने का दृष्टिकोण हो, आखिर ये सभी चीजें कोई छात्र क्विक रिस्पॉन्स देता है और कोई क्विक रिस्पॉन्स नहीं देता। इसमें भी विभिन्नताएं हो सकती है। इसी के अनुसार बुद्धि लब्धि का आधार होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट का आधार होता है, किसकी कितनी होगी। तो मैं अब इन सभी चीज़ों को आपको विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। साथ ही हावर्ड गार्नर साहब की भी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। Now, first describe in English. Education for multiple intelligence. Multiple intelligences refers to a theory describing the different ways students learn and acquire information. These multiple intelligences range from the use of words, numbers, pictures, and music to the importance of social interactions, interoceptions, physical movement, and being in tune with nature. Gardner's multiple intelligence theory. Schools known as multiple intelligence that have adopted the pedagogy and curricular methodologies influenced by the theory of multiple intelligences propounded by Dr. Howard Gardner, a Harvard educational psychologist. The human ability to solve problems or to make something that is valued in one or more cultures. Howard Gardner theory of multiple intelligence has proposed that people are not born with all of the intelligence they will ever have. It says that intelligence can be learned throughout the life. Claims that everyone is intelligent in at least 9 different ways and can develop each aspect of intelligence to an average level of competency. Intelligence, as defined by Garner, is the ability to solve problems or fashion products that are valuable in one or more cultural settings. The 9 intelligences included in Garner's theory are verbal, linguistic, logical, mathematical, visual, spatial, body, kinesthetic, musical, rhythmic, interpersonal, intrapersonal, naturalist, and existentialist.
Now, principle of multiple intelligence theory. Intelligence is not singular. Intelligences are multiple. Every person is a unique blend of dynamic intelligences. Intelligences vary in development both within and among individuals. All intelligences are dynamic. Multiple intelligences can be identified and described. Every person deserves opportunities to recognize and develop the multiplicity of intelligences. The use of one of the intelligences can be used to enhance intelligence. Personal background, density, and dispersion are critical to knowledge, beliefs, and skills in all intelligences. Number one, linguistic intelligences. As you know, that means 9 basic principles of Gardner's theory of intelligence. Number one, linguistic intelligence. Linguistic intelligence means word smart is the capacity to use language, your native language, and perhaps other languages to express what's on your mind and to understand other people. Criteria used for linguistic intelligence can understand words and manipulate the structure of language, has highly developed communication skills including speaking and storytelling, non and correctly usage rules of grammar, enjoy reading, writing, and speaking, has a large vocabulary. These people would do well in these careers: author, journalist, poet, playwright, radio announcer, etc. Now, second, logical mathematical intelligence. Logical mathematical intelligence is the capacity to use numbers effectively and reason well. Someone who has this kind of intelligence is able to see cause and effect, really well. Also, they are able to identify a problem and solve it right there on the spot. People with this intelligence think by reasoning, and they love experimenting, questioning, figuring out logical puzzles, and calculating. The kinds of processes used in the logical mathematical intelligence sequence are categorization, classification, inference, generalization, calculation, hypothesis testing. These people would do well in these careers: accountant, auditor, banker, bookkeeper, business person, computer analyst, computer programmer, etc. नाउ अब मैं इन सभी चीज़ों को हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि रिमेनिंग जो 8 बच गए हैं, 7 जो बच गए हैं, उस प्रिंसिपल को अगले क्लास में बताऊंगा। अभी पहले मैं हिंदी में स्पष्ट करूं। बहुबुद्धि के लिए शिक्षा। बहुबुद्धि एक सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसमें छात्रों द्वारा सीखने और जानकारी हासिल करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया जाता है। ये कई बुद्धि शब्दों, संख्याओं, चित्रों और संगीत के उपयोग से लेकर सामाजिक संपर्क, आत्मनिरीक्षण, शारीरिक गति के महत्व और प्रकृति के अनुरूप होने तक है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि के रूप में जाने जाने वाला स्कूल, जिसने हार्वर्ड के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रचलित बहुबुद्धि के सिद्धांत से प्रभावित शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम पद्धति को अपनाया है। बुद्धि की समस्याओं को हल करने या एक से अधिक संस्कृतियों में मूल्यवान चीज़ों को बनाने की मानवीय क्षमता को अपनाया है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो प्रस्तावित करता है, वे लोग उन सभी बुद्धिमत्ताओं के साथ पैदा नहीं हुए जो उनके पास कभी भी होगी। उनका कहना है कि बुद्धिमत्ता को जीवन भर सीखा जा सकता है। यह दावा करता है कि हर कोई कम से कम 9 अलग अलग तरीकों से बुद्धिमान होता है और प्रत्येक स्तर की योग्यता के लिए बुद्धि के प्रत्येक पहलू को विकसित कर सकता है। गार्डनर द्वारा परिभाषित बुद्धि
समस्याओं या फैशन उत्पादों को हल करने की क्षमता है जो एक या अधिक सांस्कृतिक चीज़ों में मूल्यवान है। गार्डनर के सिद्धांत में शामिल 9 बुद्धि हैं। नंबर 1 शाब्दिक / भाषा विज्ञान, तार्किक, गणितीय, दृश्य, स्थानिक, शारीरिक, गतिपरक, संगीतमय, लयबद्ध, पारस्परिक, अंतर व्यक्तित्व, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। बहुबुद्धि के सिद्धांत बुद्धिमत्ता विलक्षण नहीं है, बुद्धिमत्ता एकाधिक है। प्रत्येक व्यक्ति गतिशील बुद्धिमत्ता का एक अनूठा मिश्रण है। विकास के भीतर और व्यक्तित्व दोनों में अलग अलग होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति गतिशील होते हैं। कुल मिलाकर बुद्धिमत्ता को पहचाना और वर्णित किया जा सकता है। बुद्धि की बहुलता को विकसित करना जो प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने के अवसर मिलते हैं। बुद्धि में से किसी एक का उपयोग बुद्धि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पर्सनल बैकग्राउंड डेंसिटी और फैलाव सभी इंटेलिजेंस में यानी बुद्धि में ज्ञान, विश्वास और कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। नाउ फर्स्ट पहला जो 9 में से पहला जो है वो भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धिमत्ता यानी जो वर्ड स्मार्ट से संबंधित है। भाषा आपकी मूल भाषा और शायद अन्य भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता है ताकि आपके दिमाग में क्या हो और अन्य लोगों को समझ सके। मानदंड भाषाई बुद्धि के लिए प्रयुक्त शब्दों को समझ सकते हैं और लेखन, बोलने और कहानी बताने के लिए उच्च विकसित संचार कौशल भाषा की संरचना में हेरफेर कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं और सही ढंग से व्याकरण के नियमों का उपयोग करते हुए पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। एक बड़ी शब्दावली है। इन लोगों को इन कैरियर में अच्छा होगा। लेखक, पत्रकार, कवि, नाटककार, रेडियो उद्घोषक आदि। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता प्रभावी ढंग से और अच्छी तरह से संख्याओं का उपयोग करने की क्षमता है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले व्यक्ति वास्तव में अच्छी तरह से कारण और प्रभाव देख सकते हैं और इसके अलावा वे किसी समस्या की पहचान करने और उसे मौके पर ही हल करने में सक्षम हैं। इस बुद्धि वाले लोग तर्क से सोचते हैं और वे तार्किक पहेली का प्रयोग करना, सवाल करना, अनुमान लगाना, गणना करना पसंद करते हैं। तार्किक गणितीय खुफिया अनुक्रम दैट मीन्स तार्किक गणितीय के आधार बता सकते हैं। में प्रयुक्त प्रक्रिया के प्रकार इस प्रकार हैं: वर्गीकरण, सामान्यीकरण, गणना, परिकल्पना, परीक्षण। ये लोग इन करियर में अच्छा करेंगे। अकाउंटेंट, ऑडिटर, बैंकर, बुक कीपर, बिजनेस पर्सन, कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि। इस प्रकार से मैंने 9 में से 2 को स्पष्ट किया। बाकी अगले वीडियो लेक्चर में जो 7 बचे हुए हैं उसको भी स्पष्ट करूँगा। On the basis of above discussion, especially 2 points, that is linguistic and second one is logical and mathematicals. It indicates that knowledge, that means basically, and development of skill basically depends on the need of your practice. आपको अपने प्रैक्टिस की जितना आवश्यकता होगी या आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बुद्धि उतनी ही जो है वो आपका भाषा का पकड़ जो है उतनी ही सबसे ज़्यादा होगी और परफेक्ट होगी। दैट मीन्स परफेक्शन ऑलवेज डिमांड और नीड ऑफ योर एक्टिविटी और राइटिंग स्किल, यानी हमेशा इस चीज़ की मांग करता है कि आप या उसकी आवश्यकता होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है बुद्धि विकसित होगी। तो मैंने ये दोनों संबंधित कैरियर कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। अब अगले क्लास में जो रिमेनिंग 7 और प्रिंसिपल हैं उसके बारे में बताऊंगा और इसके खासकर एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है उसके संबंध में भी आपसे मैं विस्तार से बात करूँगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा रहा है, आप इसे देखें, पसंद करें, इससे संबंधित नोट्स तैयार करें और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अगर सब्सक्राइब से करते हैं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।